જય અવધૂત. આપ સૌનું નવનાથ ધામ બિલીમોરાથી હાર્દિક સ્વાગત છે. છેલ્લા 50થી બી અધિક વર્ષોથી વહી રહેલી જ્ઞાનરૂપી ગંગાનો આપ સૌ લહાવો લઈ રહ્યા છે. બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાનિદાદેથી ચાલુ થયેલી આ પરંપરા પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટી દાદાએ અવિરત વહેતી રાખી છે અને આ કપરા સમયમાં ઘર બેઠા આપ સૌને આ લહાવો મળી રહ્યો છે એ ગુરુ કૃપા જ છે. એવા આપણા લોકલાડીના છોટે દાદાનું પ્રિય એવું અનોખું શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ આપ સૌ સમક્ષ પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે. આશા છે કે આપ સૌએ એ અંક વાંચી લીધો હશે અને કોઈ કારણોસર જો આપને એ અંક ના મળ્યો હોય તો આપ અમારો સંપર્ક અવશ્ય સાધો, જેથી અમે આપ સુધી એ અંક પહોંચાડી શકીએ. આપ સૌ વિદિત છો કે બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાનિદાદાનું ભવ્ય મંદિર નિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને એમાં આપણે સૌ સૌભાગી થઈએ એ આપણું પરમ કર્તવ્ય છે. અને આના માટેનો એક સુંદર અવસર આપણી સામે આવ્યો છે. એ અવસર કયો? તો આપણે સૌએ પવિત્ર અધિક માસમાં પ્રવેશ કર્યો છે. અધિક માસ એટલે 100 ગણું અધિક ફળ આપનારો માસ. તો આવા માસમાં આવું સત્કર્મ આપણે કરી લઈએ. અને શાસ્ત્રોમાં તો લખ્યું જ છે કે અધિક માસે અધિક ફલમ, પરંતુ આપણા દાદાએ તો વર્ષો પહેલાં આપણાને સાક્ષાત બતાવી દીધું હતું. આપણા મંદિરમાં જે ભગવાન દત્તાત્રેયની મૂર્તિ છે એનું આગમન એ અધિક માસમાં જ થયું હતું. અને તો આપણે દાદાના આ મંદિર કાર્યમાં સહભાગી અવશ્ય થવું જોઈએ. મંદિર અર્થે કોઈ પણ યોગદાન માટે આપ અમારા ઓફિસ કાર્યાલયનો સંપર્ક કરી શકો છો અથવા તો ઓનલાઈન મંદિરના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી શકો છો આર્થિક યોગદાન જો કોઈ હોય તો. ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં પૂજ્ય દાદાશ્રીનો આ ભગવાન દત્તાત્રેયની મૂર્તિવાળો વિડીયો પણ આપને યુટ્યુબના માધ્યમથી અમે અવેલેબલ કરાવીશું. આપ સૌ આ કાર્યક્રમ યુટ્યુબના માધ્યમથી જોઈ રહ્યા છો તો ચેનલ અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરશો. ખૂબ જ સરળ છે. યુટ્યુબ એપ ઓપન કરો અને પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદા અથવા તો વિચાર ગંગા પ્રવચનભાઈ છોટે દાદા સર્ચ કરશો એટલે દાદાની ચેનલ આપણી સામે આવી જ જશે અને એને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. વધુમાં અધિક માસ ચાલી રહ્યો છે તો એક વધારે અપડેટ તો આપવાની બને જ છે. તો એ જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે પૂજ્ય દાદાશ્રીના 150થી બી વધારે પ્રવચન આપણે યુટ્યુબ પર અપલોડ કરી દીધા છે. તો એ આપ અવશ્ય જોઈ શકશો અને ચેનલ આજે સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. હજુ એક વધારે અપડેટ, ઈશાવાસ્યમ ઉપનિષદ પરના પૂજ્યશ્રીના 5 વિષય પરના પ્રવચનો પણ યુટ્યુબ પર અપલોડ થઈ ચૂક્યા છે. તો એ પણ આપ અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરશો. તો ચાલો અધિક માસે અધિક ફલમ અને અધિક માસની શરૂઆત સત્કર્મોથી કરીએ અને ગુરુવાણીનું સ્મરણ એનાથી વધારે વિશેષ સત્કર્મ કયું હોઈ શકે. તો દાદા આપને નમ્ર વિનંતી છે કે આપની ગુરુવાણી પ્રવાહિત કરો. જય અવધૂત. गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंदमहं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम चरणारविंदमहं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. ओम नमो भगवते राधा पुरुषोत्तमाय नमः. ओम नमो भगवते मीरा गिरधर गोपालाय नमः.
यहीं हम सबके हृदय में परम पुरुषोत्तम के स्वरूप में विराजमान एवं हमारे जीवन के ऊपर परम आशीष और कृपा दोनों की उपलब्धि अपनी करुणा से कराने वाले ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम। एवं वर्तमान समय में जिस माह का महिमा है, जिस मास में हम स्नान, दान, ध्यान, तप आदि सत्कर्म करते हुए हमारे जीवन में अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे राधा पुरुषोत्तम मास में भगवान राधा कृष्ण के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। साथ साथ जो भी नाथ भक्त हर गुरुवार की विचार गंगा फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे ही श्रवण कर रहे हैं, गुरुवार के दर्शन कर रहे हैं और दूर बैठे ही दूरदर्शन करते हुए गुरुवार के महिमा का लाभ ले रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्त और धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और मनुष्य योनि प्राप्त होने के कारण हम सब मृत्यु लोक में जन्म ले चुके हैं। इसलिए जहां मृत्यु निश्चित हो, जहां प्रति क्षणों का विनाश निश्चित हो, जहां जीवन का पूर्ण विराम निश्चित हो, ऐसे भूखंड के ऊपर हमें हमारे जीवन की योग्य उन्नति कर लेनी चाहिए और योग्य उन्नति करते हुए हमें पुनः पुनः वापस जन्म न लेना पड़े, ऐसे सत्कार्य हमारे जीवन के द्वारा हमें घटित करने चाहिए। भागवत गीता, श्रीमद् भागवत या फिर वेद मुनि व्यास जी ने लिखे हुए 18 पुराण, चारों वेद या जितने भी हमारे अध्यात्म शास्त्र है, ये सभी धर्म ग्रंथ हमें मनुष्य योनि से हमें मुक्त करने के लिए बने हैं कि हम मनुष्य योनि से मुक्त हो जाए, हम देव योनि में चले जाए और देव योनि धारण करते हुए हम सृष्टि के कल्याण के कार्य करें। अब यहां आपको प्रश्न होगा कि मनुष्य योनि से मुक्त होने के बाद हमें देव योनि मिल जाएगी, तो क्या हम देव बन जाएंगे, हम परमात्मा बन जाएंगे, हम परमेश्वर बन जाएंगे? तो नहीं, हम परमात्मा बन जाएंगे, हम परमेश्वर बन जाएंगे, हम देव बन जाएंगे, यह कहने का मेरा तात्पर्य नहीं है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है, हम इसी मृत्यु लोक में मनुष्य योनि से ऊपर उठे और देव कोटि में हम पहुंचे। क्योंकि मैंने मेरे पिछले प्रवचनों में भी मैंने बताया था कि हमें 84 लाख योनि हमें मिली है। यह 84 लाख योनि यानी 84 लाख जीव
लेकिन हम देखने जाए, हमारी दृष्टि गोचर हो, हमारी दृष्टि से अगोचर हो, दृश्यमान हो या अदृश्यमान हो, फिर भी शायद हम 84 लाख योनि को देख नहीं सकते। या 84 लाख योनि कौन सी है, या किसी भी शास्त्र में बताया गया नहीं। तो यह हमें समझ लेना चाहिए कि 84 लाख योनि गिनी गिनाई हुई हो सकती है, हजारों में या शायद लाख में संख्या हो सकती है, लेकिन बाकी की योनियां कहां है? तो बाकी की योनियां मनुष्य के स्वभाव में है कि जैसा जिसका स्वभाव वैसी उसकी कोटि, वैसी उसकी योनि। किसी का स्वभाव क्रोधी हो, किसी का स्वभाव लोभी हो, किसी का स्वभाव अहंकारी हो, कोई विकृत हो, कोई दुराचारी हो, कोई पुण्यशाली हो, कोई सात्विक हो। तो हमारी योनियां यानी हमारे स्वभाव 84 लाख प्रकार के हो सकते हैं। एक दो स्वभाव मिश्रित हो सकते हैं, लेकिन जीवन में हमारे स्वभाव का प्रभाव हमारे कर्म की गति के ऊपर रहता है। इसलिए कोई मानव हो सकता है, कोई पिशाच हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, कोई देव हो सकता है। तो स्वभावों के संदर्भ में हो सके कि हमारी 84 लाख योनि हो। बाकी दृश्यमान रूप में कोई जलचर है, कोई भूचर है, कोई खेचर है, कोई मानव है। बस ये 4 प्रकार की योनियां हम जानते हैं कि जल में रहने वाला जलचर हो गया, भूखंड के ऊपर घूमने वाला प्राणी या मनुष्य हो गया, या आकाश में उड़ने वाला खेचर हुआ। लेकिन अदृश्यमान जो योनियां है वो हमारे स्वभाव में है। इसलिए मैं एक बार नहीं, बार बार और हर बार कहना चाहता हूं कि मनुष्य देह धारण करके, मनुष्य योनि प्राप्त करके अगर हम मृत्यु लोक में आए हैं तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि मृत्यु लोक में आने के बाद हम देव कोटि में पहुंचे, हम परम कोटि में पहुंचे, हमारा स्वभाव देवों के जैसा हो, हमारा स्वभाव महात्माओं के जैसा हो, हमारा स्वभाव दिव्य पुरुषों के जैसा हो। क्योंकि हमारे जीवन की गहन से गहन गति सूक्ष्म से सूक्ष्म रहे हुए हमारे स्वभाव के ऊपर निर्धारित है। हमारा उगम शायद स्वभाव से न हो, लेकिन हमारा अंत हमारे स्वभाव से हो जाता है। हमें जीवन में मारने वाला हो तो वो मोह है, हमारे जीवन में विनाश करने वाला हो तो वो हमारा अहंकार है, हमारे जीवन में पीड़ा देने वाला हो तो वो हमारी ईर्ष्या है। यानी हमारे पतन का कारण, हमारे मृत्यु का कारण, हमारे विनाश का कारण यह मृत्यु लोक में हमारा स्वभाव है। और इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया कि जहां दृश्य और अदृश्य सबका विनाश हो जाता है। जीवन तो है लेकिन क्षणिक है, लेकिन दृश्य और अदृश्य किसी भी जीवन का विनाश प्रति क्षण होता है। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया। और मृत्यु लोक में प्रत्येक वस्तुओं का विनाश है। यहां के प्रत्येक पदार्थ क्षर है, कोई भी पदार्थ अक्षर नहीं है। क्षर यानी विनाशकारी है। कोई भी पदार्थ अमर और अजर नहीं है। इसलिए
मृत्युलोक में जो एक बार जीवात्मा आ जाता है, वो आने के पश्चात कभी ना कभी समय रहते हुए समयाअंत में अपने मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप देखिए कि बचपन में हम जब जन्मे और मां के गर्भ से जैसे बाहर निकले और थोड़ा समय जैसे बीता वैसे हमारा बचपन चला गया, बचपन का मृत्यु हुआ। बचपन चला गया, हम हमारी तरुण अवस्था में आ गए, बाद में हम हमारी यौवन अवस्था में जब आए तब हमारी तरुण अवस्था का मृत्यु हुआ। तरुण अवस्था से हम वृद्ध अवस्था में पहुंचे तो हमारी युवावस्था का मृत्यु हुआ। वृद्ध अवस्था से जब हम मृत हो गए तो हमारी वृद्धावस्था का मृत्यु हुआ। यानी किसी ना किसी निश्चित समय पे कुछ मरता है, विनाश होता है, मृत्यु होती है। हमारे नाखून बढ़ते हैं, जड़ जाते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, बिखर जाते हैं, हमारे शरीर के सभी कोष बनते हैं और मरते हैं, हमारे अंदर के सभी प्रकार के श्वेत कण हो या रक्त कण हो बनते हैं और मरते हैं। यानी बनना, जीवन लेना और मृत्यु होना, यह प्रक्रिया प्रतिक्षण चालू है। और इसीलिए मृत्युलोक में काल भी मरता है, समय भी मरता है। हम ऐसा कहेंगे कि नहीं, समय नहीं मरता, समय अजर और अमर है। नहीं, मृत्युलोक में समय भी मरता है और समय मरता है, इसीलिए समय के भी विभाग हुए हैं। जैसे साल के विभाग हो गए महीने, साल के विभाग महीने यानी माह का अगर विभाग कर डाले तो महीने के 30 दिन, 30 दिनों के विभाग कर डाले तो दिन के 24 घंटे, 24 घंटे के अगर हम विभाग कर डाले तो घंटों में बची है मिनटें। हमारी कितनी मिनटें हैं? एक घंटे में हमारी कितनी मिनटें हो जाती है? एक दिन में हमारी कितनी मिनटें? तो 24 घंटे में से एक घंटा, एक घंटे में से उसका विभागीकरण करें तो उसकी मिनटें, उसकी क्षणें, उसकी क्षणों का अगर विभागीकरण कर डाले तो घड़ियां, यानी 24 मिनट की एक घड़ी। यानी घंटों का विभाजन करें तो घड़ियां, घंटों, दिन में 24 घंटे, 24 घंटों का विभाजन करें तो प्रहर। हमारे 3-3 घंटे के, 4-4 घंटे के हमारे प्रहर होते हैं। आप पंचांग में देख सकते हैं कि 1.5-1.5, 2-2 घंटे का एक एक प्रहर होता है। एक एक प्रहर को मिटा दिया जाए तो वो 24 घड़ियों में सिमट जाता है, बाद में घड़ियां हो जाती है। एक घड़ी यानी 24 मिनट। या घड़ियों को मिटा दिया जाए तो क्षण, क्षण को मिटा दिया जाए तो पल, और पल को मिटा दिया जाए तो विपड़। आप सोचिए कि यहां तो काल भी मरता है। विपड़, पल, क्षण, प्रहर, घंटे, 24 घंटे यानी एक दिन, 30 दिन यानी एक महीना, 12 महीने यानी एक साल। आप सोचिए कि समय कहां कायम रहता है। मृत्यु लोक में आने के बाद तो समय भी मरता है, और समय का मरने का अर्थ है समय परिवर्तित होता है। विपड़ पड़ में बदल जाती है, पड़ घड़िया में बदल जाती है, घड़ी प्रहर में बदलती है, प्रहर घंटे में बदलता है, घंटे दिन में बदल जाते हैं, दिन रात में बदल जाती है, रात महीनों में बदलती है, महीने साल में बदल जाते हैं। यानी कुछ मरता है,
कुछ परिवर्तित होता है। तो मृत्यु लोक में आने के बाद तो काल भी मरता है। अगर काल ही मर जाता है तो शरीर कैसे नहीं मरेगा? और अगर शरीर मरता है तो हमारे अंदर बैठे हुआ आत्मा आवागमन कैसे नहीं करेगा? आत्मा अमर है, फिर भी उसे आवागमन तो करना पड़ता है। यानी मृत्यु लोक में जहां सब कुछ मरता है वहां हमें मरना नहीं है, वहां हमें अमर होना है। क्योंकि मृत्यु लोक में ही अमर हुआ जाता है। और अमर कैसे बनते हैं? हमारे कर्मों से। आज दानेश्वरी कर्ण नहीं है, फिर भी जब दया दान उपकार की बातें हो तो कर्ण आज भी अमर है। जहां धर्मयुद्ध की बातें हो वहां अर्जुन आज भी अमर है। जहां धर्म स्थापना की बातें हो और जहां जीवन में आनंद और अनुभूति की बातें हो, जीवन में स्वतंत्रता की बातें हो, जीवन को नवपल्लवित करने की बातें हो, वहां श्री कृष्ण आज भी अमर है। जहां मर्यादा की बातें हो, जहां सांसारिक आदर्श की बातें हो, वहां राम, श्री राम आज भी अमर है। यानी देखिए, शरीर चला गया, समय चला गया, युग बीता है, फिर भी मनुष्य योनि धारण करने के बाद भी यही मृत्यु लोक में देव कोटि प्राप्त कर ली, तो आज वो अमर है, उनके कर्म अमर है। और उनसे ही हम जीवन में कुछ सीखते हैं। उनको केंद्र स्थान में रखते ही हमारे जीवन की रात और दिन होते हैं। हमारे संस्कृतियां उनको केंद्र में रख के ही गुथी गई है। तो जब हम यहां आए हैं तो हमें स्वार्थ से नहीं जीना है। हमें देव कोटि प्राप्त करते हुए, जीवन मुक्त करते हुए, जीवन से मुक्त होते हुए हमें यहां जीना है। लेकिन हम यह भूमि को स्पर्श करते ही, माया के आवरणों में बनते ही हम स्वार्थी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। और जहां हम स्वार्थी हो जाए वहां हमें हमारे सिवा और कुछ दिखता नहीं। अहम और मम, यहां तक ही हमारी यह मर्यादा है। यानी अहम यानी मैं, और मम यानी मेरी आंखों से जो दिखे वो मेरा। मेरा मन जिसे स्वीकार ले वो मेरा। मेरा मन जहां लग जाए वो मेरा। यानी अहम और मम, इतना ही हमारा डिस्टेंस रह जाता है। त्वम तक तो हम पहुंचते नहीं, परम तक तो हम जाते नहीं। जब आप आईने के सामने खड़े रह जाओ तो अब अहम, मैं हूं। और जब आईना हटा दो और बाहर सब देखो तो ये सब मेरा है। ये घर मेरा, ये जमीन मेरी, ये संसार मेरा, जेब में पैसा मेरा, सुख मेरा, सब मेरा। यानी अपने सामने जब हमें देखते हैं तब अहम, मैं। हर एक कार्य में जब हम हमें देखते हैं तब अहम, मैंने किया, मुझसे हुआ, मैं ही तो हूं। आपके जीवन के कोई भी कार्य में जब आप आपको देखेंगे तब आप अहम या भावना को आप पोषित करेंगे कि मेरा संसार मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही धरता हूं, मैं ही होता हूं। यानी मेरा मेरा मेरा, अहम अहम अहम। और जहां जहां हमारा मन गया और मन के पीछे जब हम चले गए तो मन जहां जाके रुका वो मेरा है। यानी जहां मन रुकता है वहां माया के साथ हम संबंध जोड़ देते हैं कि ये मेरा है। यानी मैं, अहम और मम जहां हो जाता है वहां समझिए स्वार्थ।
जेब में पैसे है, मेरी जेब, और पैसे जो है मम, मेरे पैसे, मैं और मेरा पैसा, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरी संपत्ति, मैं और मेरी इच्छाएं जो अभी निराकार है। तो मैं और मेरी इच्छाएं, मैं और मेरी कामनाएं, मैं और मेरे संकल्प, यानी अहम और मम, अहम और मम। तो जहां स्वार्थ आ जाए वहां अहम और मम। ये दुनिया वैसे भी स्वार्थी ही है। तो जहां स्वार्थी दुनिया में आए, उसके वातावरण में जब हम बन जाए तो अहम और मम में हम स्वार्थी बनते हैं। और जहां अहम और मम में हम स्वार्थी बन जाए, वह हम कभी पशु कोटि में चले जाते हैं, कभी पिशाच कोटि में चले जाते हैं, कभी मनुष्य कोटि में चले जाते हैं, कभी मानव कोटि में चले जाते हैं, कभी राक्षस कोटि में चले जाते हैं। बहुत कम वहां से निकलते हुए हम त्वम के ऊपर पहुंचते हैं, हम देव योनि में चले जाते हैं। इसलिए हमें कई बार सोचना चाहिए कि हमें जन्म किसने दिया। हमने जन्म लिया, हमारे भोजन की व्यवस्था मां के स्तनों में दूध को प्रवाहित करते हुए किसने की? बिना किसी मशीन के हमारी सांसें आज किसकी कृपा से चल रही है? हमारे दांत उगे और हमें भूख लगेगी, उसके पहले ये सृष्टि के ऊपर अनाज किसने पैदा किया? हम जो खा रहे हैं उससे हमारा खून बनता है, ये कौन सी फैक्ट्री से बनता है? हमारा जीवन कौन चला रहा है? ये सब अगर हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि न मैं और न मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो वो है, जो सोहम है, जो त्वम है, वही तो सब कुछ कर रहा है। और ऐसा जब हम सोचेंगे तब हम देव कोटि की ओर जाने के लिए धीरे धीरे हम सक्षम होंगे। इसलिए हम हमेशा देव कोटि की ओर गति करें। मनुष्य योनि से मुक्त होके हम महात्मा कोटि में या देव कोटि में या दिव्य कोटि में जाए। हम मरे नहीं, हम अमर हो जाए, ऐसी व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे पुराणों ने हमारे लिए की है। और वही व्यवस्था का एक भाग है अधिक मास। क्या आप देखिए कि हर दिन कुछ ना कुछ तिथि होती है, हर दिन कुछ ना कुछ त्यौहार होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ प्रसंग होते हैं। सभी प्रसंगों में जप तप दान स्नान का महिमा होता है। और यह महिमा जब हम जप तप दान आदि कर्म करें, तब हमें समझाया गया है कि आप जो भी कुछ करो उसमें आप पुण्य कमाओगे। जो भी आप कुछ करो उसमें आप जीवन कमाओगे। जो भी आप कुछ करो उसमें आप धन कमाओगे। यानी ऐसे सब प्रलोभन हमारे शास्त्रों ने हमें दिए। क्यों दिए? कि अहम और मम से हम दिन प्रतिदिन छूटे। कुछ ना कुछ उत्सव, कुछ ना कुछ प्रसंग, कुछ ना कुछ त्यौहार लाते हुए अहम और मम से हम त्वम की ओर चले जाए। मनुष्य योनि से मुक्त होके हम देव कोटि में जाए, कुछ कर्म करे, कुछ सत्कर्म करे। और अगर ये करेंगे तो हमें जीवन में लाभ होगा। ऐसा हमें सिखाया गया है, ऐसा हमें अनुभव करवाया गया है। और उसका एक ही कारण है कि हम मनुष्य योनि से मुक्त होके देव कोटि में हम चले जाएं। आज अधिक मास चल रहा है। हर महीने हमारे संस्कृति में कुछ न कुछ वार त्योहार होते हैं। हर 2 साल के बाद, हर तीसरे साल अधिक मास आ जाता है।
और अधिक का अर्थ ही होता है अधिक यानी एडिशनल, अधिक यानी एक्स्ट्रा, अधिक यानी कुछ ज्यादा, अधिकतम। क्या आप हर साल में 12 महीने जीते हो, यह साल में हर 2 साल के बाद आप 13 महीने जीवन जिए। 12 महीने ही सत्कर्म करते हैं, 12 महीने स्नान, 12 महीने दान, 12 महीने ध्यान, 12 महीने जप करते हो, सत्कर्म करते हो। लेकिन हर 2 साल के बाद अधिक एक ज्यादा महीने में आप कुछ करें। और आप ज्यादा महीने में करें इसीलिए सिखाया गया, इसीलिए लिखा गया कि अगर अधिक मास में आप कुछ करेंगे तो अधिक फल मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं से हमारे मन को देव योनि में परिवर्तित करने के लिए हमारे शास्त्रों ने एक संस्कृति गूंथी है, हमारे शास्त्रों ने धार्मिक रचनाएं की है। और जो इसे समझ लेता है वो तन मन धन से अपने जीवन को प्रतिदिन सत्कर्म के पीछे लगाता है। तो वर्तमान समय में अधिक मास आया हुआ है। अधिक मास के प्रभाव में और प्रवाह में हम 30 दिन बिताएंगे। उसके पहले पितृपक्ष हुआ जिसमें हमने पितरों के लिए प्रार्थना की और पितरों की प्रार्थना करते हुए हमने उनकी मुक्ति के लिए सत्कर्म किए। अब अधिक मास आया है जहां हम हमारे लिए सत्कर्म करेंगे। हमारे जीवन के पुण्य बढ़े इसलिए हम सत्कर्म करेंगे, हमारे स्वार्थ के लिए हम सत्कर्म करेंगे, मगर सत्कर्म करते हुए हम परमार्थ करेंगे। सत्कर्म की एक ही व्याख्या होती है कि ऐसा कर्म जो स्वार्थ में परमार्थ की ओर ले जाए। बोले आप आपके पुण्य के लिए करो, लेकिन आप जो कुछ करो उसमें दूसरों को फायदा हो जाए, ऐसे कर्म को सत्कर्म कहा जाता है। तो यह महीने में हम जो कुछ करेंगे हमारे स्वार्थ के लिए करेंगे, हमारी उन्नति के लिए करेंगे, हमारे मोक्ष के लिए करेंगे। लेकिन जो हम हमारे लिए करेंगे वह कर्म दूसरे जीवों के लिए उपयोगी होंगे। तो स्वाभाविक है कि हमारे सभी कर्म सत्कर्म बन जाएंगे। तो अधिक मास के प्रवाह में हम जी रहे हैं। और अधिक मास के लिए ऐसे कहा जाता है कि 12 महीनों की रचना हो गई। तो आप देखिए कि 12 महीने की रचना होती है, उसमें 30 दिन यानी 30 तिथियां होती है। ऐसी तिथियां कभी कभी एक के ऊपर एक तिथि आती है तो एक तिथि का क्षय होता है। ये जितनी भी तिथियां होती है सूर्य के राशि में संक्रमण करने से ये तिथियां बदलती है। सूर्य उगते ही तिथि शुरू होती है और वह तिथि सूर्य जब आठ में तब वो समाप्त होती है। यानी हमारी प्रत्येक तिथि सूर्य उदय के साथ शुरू होती है। हमारी जितनी भी तिथियां हैं उसमें सूर्य के परिभ्रमण का संक्रमण होता है। हमारी जितनी भी राशियां हैं उसमें सूर्य प्रवेश करता है और जैसे जैसे राशि में सूर्य प्रवेश करता जाए वैसे वैसे हमारे हर दिन की तिथियां बदलती है। तो कभी कभी एक के ऊपर 2 तिथियां जब आ जाए तो एक तिथि का क्षय हो जाता है। ऐसी क्षय हुई तिथि एक जगह पे जमा होती रहती है और हमें उस समय पे लगता है कि आज हमने ये महीने में कम दिन बिताए, हमने 30 तिथियां नहीं मनाई, हमने यह महीने में 28 तिथियां मनाई है, 2 तिथियों का सही हुआ है। एकम के ऊपर बीज आ गई तो दूसरे दिन तीज नहीं होती, तीसरे दिन चौथ हो जाती है, चतुर्थी हो जाती है, यानी एक तिथि का सही होता है।
कभी कभी आप नवरात्रि में देखो तो नवरात्रि में 9 दिन पूरे नहीं होते, 8 दिन में भी नवरात्रि उठ जाती है, उसका उद्यापन हो जाता है। एक ही दिन में 2 तिथि आए तो एक तिथि का क्षय होता है। और तब हम सोचते हैं कि ये महीने में हम 28 दिन जिए, ये नवरात्रि में हमने 8 दिन मनाए, ये श्राद्ध पक्ष में हमने 14 ही दिन मनाए, ये महीने में हमने कम दिन बिताए। लेकिन बोले हम कम दिन बिताए, हमारे पंचांग की कुछ रचना ही ऐसी है कि ऐसी क्षय हुई तिथि कहीं ना कहीं संचित हो जाती है। और 2 साल में ऐसी तिथियां जहां संचित हो और वैसी 30 तिथियां इकट्ठा हो जाए तो 1 महीना ज्यादा हो जाता है। और ये जो 30 तिथियां संचित हुई है, इसे भुगतेगा कौन, इसे जिएगा कौन? तो वही 30 तिथियां एक हो जाने के बाद हर 2 साल में अधिक मास आता है, यानी तिथि क्षय नहीं हुई। जो क्षय हुई तिथि है वो 2 साल के बाद कभी ना कभी हमें जीनी पड़ती है, हमें निभानी पड़ती है। उसमें भी हमें दान पुण्य तो करने ही पड़ते हैं। और ऐसा जब 1 महीना 30 तिथि का बन जाए उसे कहते हैं अधिक मास। क्षय हुई तिथि जहां एक हो जाए, ऐसी 30 तिथि बन जाए, ऐसा महीना हमें कहीं ना कहीं निभाना पड़ता है। कहीं 2 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 साल के बाद हर तीसरे साल अधिक मास की शुरुआत हो जाती है और इसे कहते हैं अधिक मास। हर एक साल में एक एक अधिष्ठाता देवता है, अधिष्ठाती देवी है। हर एक महीने को कोई ना कोई देवी और देवता ने अपना सानिध्य दिया है। जैसे सावन मास हो तो भगवान शंकर उसके देवता है और मां पार्वती उसकी देवी। ऐसे प्रत्येक महीने में कोई देवी है और कोई देवता है। तो जब 12 महीने के बाद एक तीसरा महीना एक अधिक हुआ तो अधिक तिथियों के क्षय से बना था, इसलिए ऐसे कहा गया कि ये मल है, विकृत है, ये मैला मास है, यहां मल इकट्ठा हुआ है, क्षय हुई तिथि वहां इकट्ठी हुई है, बिगड़ी हुई तिथियों का ये मास है, तो ये अनाथ है, इसे कौन संभालेगा? तो अधिक मास को मल मास कहा गया। जहां भी वो जाता था उस लोक से उसे निकाल दिया जाता था कि नहीं, तू मत प्रवेश हो। जहां सूर्य ने संक्रमण नहीं किया ऐसी तिथियां तेरे महीने में है, तेरे महीने में अंधेरा है, तेरे महीने में क्षय है, तो तू हमारे लोक में मत आ, तेरे आने से हमें पीड़ा होगी, जा तू यहां से चला जा। यानी अधिक जहां जहां जाता था 14 लोक में उसे कोई स्थान नहीं था, सब उसे निकाल देते थे। वो अनाथों की तरफ भटक रहा था, वो रो रहा था, वो दुखी था, वो भूखा था, वो तरसा था, उसे ग्लानि हो रही थी, उसे यातना हो रही थी कि मेरा निर्माण सही तिथियों से हुआ है, फिर भी मुझे कोई अपनाता नहीं। मुझे मैला बोल के मुझे मल कहा जाता है, मल मास कहा मुझे जाता है, मुझे वहां से निकाल दिया जाता है। मेरे मास में कोई शुभ कर्म होते नहीं है। कोई देवता या कोई देवी मेरे मां बाप बनने के लिए तैयार नहीं। तो मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन मुझे स्वीकारेगा? कौन मुझे अपना अधिकार देगा? मेरे जीवन का क्या? ऐसे करते हुए वो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है। ब्रह्मांड में घूमते घूमते एक बार वो वैकुंठ चला गया। वैकुंठ में भगवान चतुर्भुज विष्णु अपने शेष शैया पे सोए थे। माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी। वहां वो मांस रोता रोता आया। भगवान ने देखा कि मैला है, रो रहा है, दुखी है, और आके भगवान के चरणों में पड़ा और उसने प्रार्थना की कि भगवान, पूरी सृष्टि के आप स्वामी हो, सभी जीवों के आप आधार हो,
तो मेरी ऐसी क्या गलती है कि आपने मुझे स्वीकारा नहीं? इस दुनिया में मैं एक ही हूं जिसको आप स्वीकारते नहीं, और मुझे मरने के लिए, रखड़ने के लिए मुझे छोड़ दिया। अंत में मेरी उत्पत्ति तो आपसे ही हुई है, तो मेरे पे कृपा कीजिए, मुझे जीवन दीजिए, मुझे आश्रय दीजिए। ऐसा कहते हुए वो रोने लगा। रोते 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 वो मूर्छित हो गया। वहां जैसे वो मूर्छित हुआ, माता लक्ष्मी ने उसे पानी पिलाया, उसे स्वस्थ किया। वापस वो अपने भान में आया। भान में आने के बाद भगवान ने उसकी यातनाएं जानी, और भगवान ने कहा, चलो, मेरे वैकुंठ में जो रोता हुआ आता है वो हंसता जाता है। तेरा कुछ तो पुण्य है, तू वैकुंठ तक तू आया है। चल मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसा स्वामी देता हूं जो युगांतर है, धर्मधारक है, मुझसे भी अधिक, जिसने इस सृष्टि को संभाले रखा है। ऐसे मनोहर के पास मैं तुम्हें ले जाता। उसका हाथ पकड़ा और भगवान विष्णु स्वयं गोलोक में गए, वृंदावन में गए। वहां वृंदावन में भगवान गायों के बीच बांसुरी की मधुर धुन बजाते हुए अपने निजानंद में मस्त थे। चतुर्भुज विष्णु पधारे, यह देख के भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान, आप स्वयं यहां क्यों पधारे? भगवान विष्णु ने कहा कि मैं बहुत महत्व के कार्य के लिए आज तुम्हारे गोलोक आया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे सेवा बोलिए, क्या सेवा मैं आपकी करूं? आप तो जगत के पालनहार हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं पालनहार हूं, तुम धारणहार हो। ये मेरे साथ जो आया है, ये 12 महीने के बाद का एक मास है। उसका चरित्र ऐसे ऐसे है, उसके जीवन की कथनी ये है। ये अनाथ है, इसे कोई स्वीकार नहीं रहा, तो आप इसका स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु ने उसे अपने पास बिठाया, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास बिठाया और कहा कि भगवान विष्णु तुझे यहां लेके आए हैं, मैं उनका ही अंश हूं। क्यों नहीं? मैं मेरी जिम्मेवारी, मेरा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। जाओ, आज से तुम्हारा स्वामी मैं हूं, और तुम्हारी स्वामिनी, तुम्हारी माता और कोई नहीं, स्वयं राधा है। क्योंकि गौलोक में राधा आद्य शक्ति है। वैसे मेरी हजारों रानियां हैं, लेकिन मेरे आध्यात्म जीवन में मेरी कोई संगिनी है तो मेरी आद्या राधा रानी है। तो तू गोलोक में आया है, इसलिए मैं तेरा स्वामी हूं। वृंदावनेश्वर, मैं तेरा स्वामी हूं। वृंदावनेश्वर कृष्ण, वृंदावनेश्वरी राधा रानी, कि वो तेरी स्वामिनी है। आज से तू मेरा बालक है, तेरा स्वीकार मैं करता हूं। आज से तेरे अधिक मास में जो भी जीव, जो भी योगी, जो भी भोगी, जो भी व्यक्ति दान, धर्म, स्नान, तप करेगा, उसे बाकी के महीनों में से अधिक फल प्राप्त होगा। क्योंकि तेरा स्वामी मैं हूं। स्वयं पुरुषोत्तम तेरा स्वामी है, राधा तेरी मां है। तो स्वाभाविक है कि बाकी के सब महीनों से ज्यादा तेरे महीने में जो कुछ कोई करेगा, उसे मैं अधिक से अधिक फल दूंगा। आज से तू पावन हो चुका है, अब कोई तुझे मल नहीं कहेगा। आज से सब तुझे पुरुषोत्तम मास कहेंगे, मेरे नाम से तुझे जानेंगे। और भगवान ने अधिक को, मलमास को पवित्र करते हुए अपने चरणों में स्थान दिया। भगवान ने एक अनाथ को सनाथ कर दिया और अपना सानिध्य उसे दे दिया, अपना नाम दिया। तब से 12 महीनों में
अधिक सबसे श्रेष्ठ महीना माना गया। तो आप देखिए कि जो मल मास था, जिसमें तिथियों का क्षय था, जिसमें सूर्य किसी राशि में संक्रमण नहीं करता था, लेकिन जब उसने भक्ति की, जब उसने भाव किए, जब उसने भजन किए और अपनी जो कोटि है वो देव कोटि की ओर उसकी गति की, तब भगवान ने उसका स्वीकार कर लिया। यानी पृथ्वी लोक में होने के बाद भी जहां भगवान स्वीकार कर ले, वहां हमारी मानव कोटि भी देव कोटि में बदल सकती है। आज अधिक मास देवत्व है, देवत्व पामा है, और इसलिए कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में जो भी आप कर्म करो अधिक से अधिक फल प्राप्त होते हैं। और कर्म यानी क्या होता है? कर्म यानी शरीर से जो करो वो कर्म, भाव से जो करो वो सदकर्म, आत्मा से आप जो भी कुछ करो वो दिव्य कर्म। यानी ये महीने में आपके शरीर से आपको कुछ करना है। क्या करें? ध्यान करें, लेकिन अकेले ध्यान से क्या होगा? स्नान करें, स्नान से तो तन शुद्ध होगा, ध्यान से मन शुद्ध हो जाएगा। तप करे तो तप से तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारी इंद्रिया सबका शुद्धिकरण होगा। लेकिन ये जो भी हम जो करेंगे ये हमारे सब मनोमय कर्म है। लेकिन यह कोटि को सुधारने के लिए जो भगवान ने पृथ्वी लोक में ये जो शरीर दिया है, वह शरीर को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाए, हमारे अगले भाव को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाए, तब कहा गया है वहां दान किया जाए। यानी स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है, तब से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारी इंद्रियां की शुद्धि होती है। लेकिन यह भव की शुद्धि, यह योनि की शुद्धि कहां से होती है? पुण्य की प्राप्ति कहां से होती है? तब कहा गया दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जब आप दान करो तो पुण्य प्राप्ति होती है। आपके शरीर से आप जब दान करो तो जो शरीर है उसकी शुद्धि होती है, उसकी सार्थकता हो जाती है कि आपने किसी को कुछ दिया। आप अहम और मम से त्वम की ओर गए, आपके द्वारा किसी के जीवन के लिए कुछ हुआ, उसे कहा जाता है दान। यानी ये महीने में दान धर्म का महिमा है, इसलिए कहा अधिक मास से अधिक फलम। ये महीने में जितना आप दान करो उससे एक नहीं अनेक गुना फल मिलता है। डबल नहीं होता, डबल से भी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रमाण में आपको पुण्य मिलता है, आपको सुख मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको समृद्धि मिलती है, जीवन सार्थक होता है। लेकिन यह महीने में कुछ कर्म करने चाहिए, और कर्म में सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है दान। दान करने में आपका मन इन्वॉल्व हो जाए, दान करने में आपका तन इन्वॉल्व हो, दान करने में आपकी यथाशक्ति इन्वॉल्व हो जाए। तन मन धन से किया हुआ दान ये श्रेष्ठ दान हो जाता है। इसलिए ये महीने में दान का महिमा है। दान अनेक प्रकार के होते हैं। दान का एक ही अर्थ होता है, दान यानी आपके पास जो है उसमें से आप कुछ दो, यह दान। दान का अर्थ ये नहीं कि जो नहीं है उसको चोरी करके लाओ और दे दो, दूसरे के अधिकार का छीनो और दान करो। हम अपना गुजराती में कहे छे धाड़ करीने धर्म करवो, ये नहीं। कोई ने धाड़ पारीने धर्म करो, ये खोटू। आपके पास जो कुछ है उसमें से किसी को कुछ दे दीजिए, किसी अधिकारी को कुछ दे दीजिए, किसी आवश्यकता वाले को कुछ दे दीजिए, उसे कहा जाता है दान। दान शब्द आया है देवता के ऊपर से। जो देने वाला होता है वो दाता, जो प्रकाश देने वाला होता है वो दीप, जो जीवन देने वाला होता है वो देवता। यानी दान शब्द देने की वृत्ति है। जहां देने की वृत्ति
अधिक से अधिक शुद्ध रूप में हो, वो दानी कहलाता है। यानी दान भी विविध प्रकार से दिए जाते हैं। और भगवत गीता में तो कहां है कि सात्विक दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, के कैसी भावना से आप दो, कैसी वृत्ति से आप दो, वैसा वो दान कहा जाए। सात्विक दान हो तो श्रेष्ठ, रजोगुणी दान हो तो उत्तम, और तमोगुणी दान हो वो नीच। ऐसी 3 कोटियां की गई है। यानी दान यानी देने की कोई वृत्ति, मगर कैसी वृत्ति, वो आपके ये तीनों गुणों के ऊपर आधारित है कि आपने किस गुण से प्रेरित होके आपने कुछ दिया है। दान जब हम दे तो दान अनेक प्रकार के होते हैं। धन दान, वस्तुदान, वस्त्रदान, क्षमादान, दयादान, जीवतदान, शांतिदान, अन्नदान, जलदान, भूमिदान, कितने दान, अंगदान, कितने दान हो, अनेक प्रकार के दान होते हैं। यानी दान का एक अर्थ सिर्फ धन नहीं, विविध विविध जरूरियात वाली वस्तुओं जब किसी जरूरियातमंद को आप दे दो तो उसे कहा जाता है दान। दान यानी आपके हाथों से देना, उसे कहा जाता है दान। आपके द्वारा दूसरों को कुछ पहुंचा देना जहां वो आवश्यकता हो, उसे कहा जाता है दान। यानी दान विविध प्रकार से होता है, लेकिन विविध प्रकार से भले ही दान हो, आपकी वृत्ति कौन सी बोल रही है, यह दान श्रेष्ठ होता है। सात्विक दान का एक सीधा अर्थ होता है कि जहां आवश्यकताओं के ऊपर हम दान करें, जहां हमारी कर्तव्य भावना समझ के हम दान करें, और जो दान करें उसमें समाज, मानवता और राष्ट्र के हित की भावना से दान करें, जहां कुछ लेने की इच्छा से दान न करे, ऐसा दान होता है सात्विक दान। जहां कुछ बदले की भावना से दान हो, कुछ दे और सामने से कुछ मिले, प्रतिष्ठा मिले, नाम मिले, वैभव मिले, प्रशंसा मिले, कुछ व्यापारीकरण हो, जहां कि जो देने से कुछ मिले। राजा यज्ञ करते थे और यज्ञ करने के बाद ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते थे। आशीर्वाद लेने के सामने राजा उसे गौदान करते थे, भूमिदान करते थे। यानी यह दान ऐसे पुण्य में संभवित होता है जहां हमारी कुछ कामना हो। ऐसा दान जो होता है वो रजोगुणी दान, जहां स्वार्थ है पर परमार्थ भी, तो वो उत्तम है। जहां कुछ फल की इच्छा से न किया जाए, वो सात्विक है, श्रेष्ठ है। और जहां तमोगुणी दान, तिरस्कार से दिया जाए, किसी का छीन के किसी को दिया जाए, तिरस्कार से दिया जाए, क्रोध से दिया जाए, कुछ बुरा करने की भावना से जहां दे दिया जाए, वो होता है तमोगुणी दान। दुर्योधन ने दिया, ऐसा वन दे दिया जहां नागों की संख्या थी पांडवों को, और वहां वो भूमि उनको दे दी गई कि वहां वो मरे, श्रापित भूमि दे दी गई। ये कैसा दान? भूमि तो दी, मरने के लिए छोड़ा गया, तो ये तमोगुणी दान। तो ऐसे दान के भी 3 वृत्तियां हैं। हमारी 3 वृत्ति के ऊपर हमारे कर्म की गति रहती है। लेकिन श्रेष्ठ दान जो होता है, मां कर्म फल हेतु कदाचन, कर्मण्येवा अधिकारस्य मां कर्म फल हेतु कदाचन। कि कर्म करने का सिर्फ आपको अधिकार हो, फल कैसा मिले ये कामना न हो, फल में आपकी इच्छा न हो, आपकी कैसी वृत्ति है, जैसा आपको फल चाहिए वो वृत्ति न हो, किसी भी फल में आपका स्वाद न हो, स्वाद मुक्त दान, उसे कहा गया है सात्विक दान, कर्तव्यनिष्ठ दान। और ऐसा दान अगर हम अधिक महीने में करें, अधिक मासे अधिकतम अधिक फलम हमें प्राप्त हो जाता है।
इसलिए कहा गया है कि दान जो होता है वो दान विविध कारणों से हो जाता है। दान के पीछे कारण भी होते हैं। कोई भी दान बिना कारण, धर्म भावना से आप दान करो, धार्मिक दान करने के लिए धर्म की जरूरत पड़ती है। पैसा बढ़े इसलिए अर्थ के लिए दान, धर्म के लिए दान, कामना पूर्ण हो उसके लिए दान, भय से मुक्त होने के लिए दान। कभी कभी शर्म में दान करना पड़ता है। एक आदमी दान बोले तो दूसरे को शर्म में लिखाना पड़ता है, तो लज्जा दान। ऐसा दान के विविध माध्यम है, विविध माध्यमों से दान होता है। शर्म में दान हो जाता है, भय से बचने के लिए दान, अभय होने के लिए दान, मृत्यु से बचने के लिए दान, धर्म से दान, अर्थ से दान, कामनाओं से दान। दान विविध माध्यमों से किया जाता है। और विविध माध्यमों से जब किया जाए वो दान तो है, लेकिन श्रेष्ठ दान कौन सा है? तो श्रेष्ठ दान कहा गया है कर्तव्य भाव से किया जाए वो दान, वो श्रेष्ठ दान है। आज आप देखिए कि हम दान करते हैं, वहां 3 प्रकार से दान हो जाता है। एक श्रद्धा से दान हो, वो भी महत्वपूर्ण, कि दान जब करो तो दान में आपकी श्रद्धा होनी ही चाहिए। बिना श्रद्धा के आप दान करो वो दान नहीं, वो दंभ है। गुरु दरबार में आपने कुछ दिया, ये श्रद्धापूर्ण दान, श्रद्धापूर्वक दान। यहां आप 100 रुपये रखो या 1000 रुपये, आप सोचते नहीं, आपकी श्रद्धा है कि हम जहां 100 रुपये या 1000 रुपये रखते हैं उसका सदुपयोग योग्य से योग्य रूप में होता है। ऐसी श्रद्धा से जहां दान करो, ये श्रद्धापूर्वक दान। यानी दान जहां हो वहां जरूरी है, एक अंग है दान का कि श्रद्धा होनी चाहिए। एक पक्ष श्रद्धा का भी है। जैसे 4 दिशाएं होती है, 4 दिशाओं से महल का निर्माण होता है। महल के 4 स्तंभ होते हैं, उसके ऊपर पूरा भवन निर्माण हो जाता है। वैसे दान का एक आधार, दान का एक पक्ष, एक दिशा श्रद्धा है। बिना श्रद्धा से कभी दान संभव ही नहीं। दान की व्याख्या पूर्ण नहीं होती जहां श्रद्धा न हो। श्रद्धा से किया गया दान, आप जहां दान दो, जहां श्रद्धा हो वहां ही दीजिए। बिना श्रद्धा के आप जो भी कुछ देंगे वो दान आपको पुण्य नहीं देगा, वो दंभ है। आपके गुरु के दरबार में आप दान दो, श्रद्धा है। कई लोग दान देते हैं, कई लोग रसीद भी नहीं मांगते, एक श्रद्धा है। मांगे तो भी कुछ नहीं, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं हमने दे दिया, ये श्रद्धा है। जहां श्रद्धा से आप दो वहां आपका समर्पण होता है। आपने जो दिया उसका फल क्या है, वो किस कार्य में जाए वो आप नहीं सोचते, उसे कहा गया है श्रद्धा पूर्वक दान। कोई आए और कहे कि हाँ मैं यहां दान देता हूं मगर ऐसी इच्छा है, तो ऐसा दान नहीं देना है। जहां आपका मन ही न लगे वहां दान मत दीजिए। जिस आश्रम में आपको श्रद्धा है वहां दान दे दी। श्रद्धा हो तो दान की गति तीव्र होती है। पानी के प्रवाह में कुछ डाल दीजिए, वो पहुंचता है। यानी श्रद्धा से जहां श्रद्धा हो और श्रद्धा से जहां 1 रुपये का भी दान दिया जाए उसका फल अधिकतम अधिक आपको प्राप्त होता है। यानी दान ऐसी जगह देना चाहिए जहां श्रद्धा हो। दान का दूसरा एक दिशा है, दूसरा एक पक्ष है, जिस पक्ष को कहा गया है कि जहां आप दान दो वहां कर्तव्य भाव से देना चाहिए। दान देना यानी भीख देना नहीं, दान देना यानी कर्तव्य। मेरे मां बाप के लिए मैं कुछ करूं, यह दान नहीं है, कर्तव्य है। कर्तव्य भी एक दान है। मेरे संबंधियों के लिए, मेरे पूर्वजों के लिए मैं कुछ करूं, यह कर्तव्य है। इसलिए पिंडदान कहा गया कि जो गए हैं उनके लिए कुछ दे दो। हमारा कर्तव्य है, देना चाहिए, उनके द्वारा हम है, तो उसे कहा गया है पिंडदान।
दान तो शब्द आया है, मगर कर्तव्य भावना कि कर्तव्य से जहां आप कुछ दे दो वो दान सार्थक हो जाता है। जिस जगह आपकी श्रद्धा हो, जहां आपको कुछ अपनापन लगे, जहां आपकी जिम्मेवारी आपको लगे, वहां आप कुछ दे दो, ये कर्तव्य भाव है। माता के पिता के प्रति आप कुछ करो, ये कर्तव्य भाव। अपने पूर्वजों के प्रति करो, ये कर्तव्य भाव। अपने गुरु के लिए आप कुछ करो, ये आपका कर्तव्य भाव कि आपके कर्तव्य के दायरे में वो है। आपके देश के लिए आप कुछ करो, ये आपका कर्तव्य दान। जहां जहां आपका कर्तव्य लगे, जहां जहां से आप जुड़े हो, और कर्तव्य का अर्थ एक सीधा होता है कि जिसके ऋण में आप हो उसके लिए जो आप कुछ करो, वो ऋण में किया गया दान, ये कर्तव्य होता है। यानी कर्तव्य निष्ठ होके दान करना, तभी आपका दान परिपूर्ण दान है। यानी दान के ये दो खंड हुए, दान के दो पिलर हुए, एक श्रद्धा और दूसरा कर्तव्य। तीसरा दान का एक मुख्य शिखर यानी एक त्रिकोण है, 1, 2 और 3। तीसरा कि दान जहां आप दो वहां प्रेम भाव होना चाहिए, प्रेम से दान होना चाहिए, दया भाव नहीं। दया तो किसी के तरस आने से भी हो सकती है, किसी का दुख देखने के बाद भी दया आ सकती है। हमें दया जन्म ले, इसलिए सामने कोई दुखी होना चाहिए। भिखारी आया, एक रोटी दे दी, दया से दी है। क्यों? वो भूखा है, तरसा है, तो बेचारे को मुझे कुछ देना है, ये बेचारा भाव है। यानी दान के लिए दया नहीं, दान के लिए प्रेम दान। प्रेम से जो दिया जाए वो दान। यानी दान का जो शिखर है, दान का जो कलश है, ये 3 त्रिकोण के ऊपर खड़ा है। एक श्रद्धा, जहां हो वहां ही दान। बिना श्रद्धा के आप करो, ये दम्भ हो जाएगा। किसी की शर्म में आप करेंगे, ये दम्भ हो जाएगा। बिना मन का दान है ये, जो पहुंचेगा नहीं। ये सत्कर्म लेके नहीं आएगा, ये सत्कर्म नहीं बनेगा, ये पुण्य लेके नहीं आएगा। बिना कर्तव्य से किया गया दान, जहां आप कर्तव्य समझ लो, वहां से जो दान किया जाए वो सार्थक हो जाता है। और तीसरा प्रेम दान, प्रेम से दान होना चाहिए। प्रेम सबको एक साथ कर लेता है। प्रेम एक म्यान में 2 तलवार को रख लेता है। प्रेम छोटे से घर में सबको बसा लेता है। लेकिन जहां दया आई, जहां सब जुदा हो जाते हैं, एक दूसरे से सब छूट जाते हैं। दया से छोड़ा जाता है, प्रेम से दिया जाता है। और इसलिए दान जहां हो वहां प्रेम होना चाहिए। प्रेम से दान, जिसे आप दान दो अपना समझ के दो, समत्व से दान, प्रेम से दान। वो नीच है मैं ऊंच हूं, यह भावना से नहीं, समकक्ष है यह भावना से दान। मैं भी मानव हूं, वो भी मानव है, मानव मानव की मदद करे, ऐसी भावना से जो दिया जाए वो दान प्रेम दान। जहां प्रेम से दान दिया जाए वहां कोई क्वांटिटी नहीं होती, जितना हो उतना आप दे दे उसे। लेकिन जहां दया से दिया जाए वहां गिनती होती है, वहां गिन गिन के दिया जाता है। जिससे आप प्रेम करो उसे आप कुछ दे दो, उसे सर्वस्व दिया जाता है। जिसे आप प्रेम करते हो उसे तन मन धन सब अर्पण हो जाता है। जहां प्रेम हो वहां तर्क नहीं होता, वहां संशय नहीं होता, वहां विखवाद नहीं होता, वहां कोई खामियां नहीं होती। प्रेम सर्वस्व का दान कर देता है। इसलिए हम कहते हैं मरु तन मन धन गुरु ना चरणों में। सदगुरु से हम प्रेम करते हैं तो हमारा तन मन धन सब अर्पण।
नवधा भक्ति, नवधा भक्ति से हम भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। अर्जुन नवधा भक्ति से अर्पित था, सब दे दिया, अपने पास उसे कुछ नहीं रहा। जहां हम स्वयं उसके अंदर चले जाए वो प्रेम होता है। प्रेम एक दूसरे में एक दूसरे को समा लेता है। जहां दो एक हो जाए वो प्रेम, यानी प्रेम से जो दिया जाए वो दान। ये दान का तीसरा स्तंभ है। यानी दान की इमारत, ये पुण्य की इमारत 3 दिशाओं से खड़ी है, 3 स्तंभ है, इसके 3 आयाम है। ये एक शिखर है जहां होता है दान। यानी दान की व्याख्या, ये 3 जहां न हो वहां समझ लीजिए कि आपका दान या तो दंभ है, या आपका दान आडंबर हो सकता है, या आपका जो भी कुछ दान दिया गया है वो दान ये सिर्फ दिखावा है। ये 3 जहां मिल जाए वहां दान श्रेष्ठ होता है। इसीलिए दान का महिमा यह माह में सबसे ज्यादा है। आज आप देखते हैं कि कहीं कहीं रूप से दान दिया जाता है, कहीं कहीं जगहों पे दान दिया जाता है, लेकिन दान देने के बाद हम त्वरित फल की इच्छा करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो भूत्वा समत्व योग उच्यते। कि जब आप कर्म करो तो कर्म करने के बाद कर्म फल की संगत छोड़ दो। त्यक्त्वा धनंजय, छोड़ दीजिए, आशा ही छोड़ दीजिए। मैंने दान दिया, बाद में फल की आशा छोड़िए। सिद्ध सिद्धयो भूत्वा, कि सब समान होना चाहिए, समानता रखिए। समत्व योग उच्यते, बाद में दुख नहीं होना चाहिए। जहां आपने कुछ दे दिया उसका फल क्या है, सुख या दुख, वो नहीं होना चाहिए। समत्व योग उच्यते, समभाव से दे दीजिए। जो करना है दान समभाव से कर दीजिए। सुख मिले या दुख मिले मत सोचिए। समत्व भाव योग उच्यते, वहां समत्व योग का निर्माण कर दीजिए। तो जो भी कुछ मिलेगा वो पुण्य ही होगा, और पुण्य हमेशा शांति जन्य होता है। आपके जीवन में शांति मिलती हो तो समझिए कि आपका कोई पुण्य है, तो आपके जीवन में शांति। जो कुछ आप कमा रहे हो, भले कम कमा रहे हो, मगर 100 रुपये में भी आपको महल का सुख मिलता है, तो समझ लीजिए किसी ना किसी जन्म के आपके पुण्य है। यह आपकी समृद्धि है। समृद्धि का अर्थ है ये नहीं ज्यादा से ज्यादा पैसा है। पैसा भी विनाश लेके आ सकता है, पैसा भी रोग लेके आ सकता है, लेकिन जो आप कमाते हो उसे शांति से जिए, संतुष्टि से जहां जिए, समझ लीजिए पूर्व के कुछ आपके पुण्य कर्म है। जो आप कुछ कर रहे हो वह निर्विघ्न सफल हो रहा है, समझ लीजिए पूर्व के आपके कुछ पुण्य कर्म है। आप जितना भी जीवन जी रहे हो, भले आपको रोग लगे, आपको मुसीबतें आए, लेकिन आई हुई आपत्तियां दवा करने से, कुछ ना कुछ करने से मिट जाती है, तो समझो कि कुछ ना कुछ आपके पुण्य है। आया हुआ रोग औषध से मिट जाए, कुछ ना कुछ आपके पुण्य कर्म है। यानी ऐसे भावना से जो कुछ दान दिया गया है, यह दान आपके जीवन में शांति, समृद्धि, सांत्वना, सुख ये लेके आए। लेकिन ये जो दान ये 3 छोड़ के किया गया है, अश्रद्धा से किया गया है, जहां श्रद्धा नहीं और दे दिया बिना मन से, जो दान कर्तव्य निष्ठा से नहीं किया गया, जो दान कुछ पाने के लिए किया गया कि मैं इनकी सेवा करूं, मुझे कल उठ के जमीन में मेरे नाम हो जाए, संपत्ति का व्हील मेरे नाम हो जाए, ऐसी भावना से, जो कर्तव्य विमुख भावना से जो किया गया वो पाप बन जाएंगे। और तिरस्कार भाव से जो किया गया, दया भाव से मैं तो कहता हूं किया गया, ये पाप है। दान प्रेम से ही होना चाहिए। आज आप देखिए कि आप जो भी कुछ गुरु दरबार में देते हैं श्रद्धा से देते हैं। अन्नदान होता है, हमारे आश्रम से स्वयंसेवक आपके घरों में आते हैं, कोई डिमांड नहीं होती, लेकिन आपने पहले से कहा है हमारे घर आना,
हमारे खेत में जो उगे 1 दाने या 1000 आप लेके चले जाना। आपके पास आते हैं, आप उन्हें जो देते हैं 1 मन, 2 मन, 10 मन, बिना कुछ डिमांड किए वो ले लेते हैं। आप जो भी कुछ रकम लिखाते हैं वो लिख देते हैं, जो देते हैं वो ले लेते हैं। हमारा कोई स्वयंसेवक ऐसा नहीं कि आपने जो लिखा है उसके ऊपर से आपको मांगेगा कि भाई आपने 1000 लिखाए थे, आपने दिए क्यों नहीं। आप जो यथाशक्ति यथा दान करो वो वहां स्वीकार लिया जाता है। तो आपका जो दान है ये श्रद्धा से है। हर साल आप अन्नदान करते हो, घर घर से यहां अनाज आता है, घर घर से सब्जियां आती है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ भाग आश्रम में दे देता है, आश्रम के सेवा कार्यों में दे देता है। ये क्या है? श्रद्धा दान। कोई बार कोई न जा पाए तो सामने से फोन आता है कि इस बार कोई आया नहीं अनाज लेने के लिए। ये आपका श्रद्धा दान है। ये भावना ही बोलती है कि आपकी भरपूर श्रद्धा है कि जो हम देते हैं उसमें हजारों के कल्याण होते हैं। ये आपकी श्रद्धा है। आप याद रख के याद करते हो कि इस बार कोई अनाज लेने नहीं आया, इस बार कोई अन्न क्षेत्र के लिए कोई आर्थिक दान लेने नहीं आया आश्रम से। ये आप याद करके बोलते हो। ये आपका कर्तव्य बोलता है कि मेरा कर्तव्य है, मुझे देना है, कोई क्यों नहीं लेने आए। और आप प्रेम से देते हो, ज्यादा से ज्यादा दे देते हो। जो है वो भी बहुत ज्यादा है, वो भी आप ज्यादा देते हो। घर में कोई कंकास नहीं, आप जब घर से दो तो घर के सब सदस्य आप में सहमत हो जाते हैं। भले कोई यहां न माने, किसी और संप्रदाय में माने, फिर भी आपके घर से लोग वहां सहमत हो जाते हैं। ऐसा दान जहां दिया जाता है, निर्विवाद दान, ये प्रेम पूर्वक दान है। तो आज तक जो आप करते आए ये श्रेष्ठ दान है। अधिक मास से तो क्या, आप तो पहले से करते आए, लेकिन अधिक मास से अधिक फलम, यानी हमारे सदगुरु ने जो संस्कार दिए उससे हमने सात्विक दान ही किया है। और ऐसे सात्विक दान जहां आपने दिए हैं वहां समझ लीजिए कि आपके पुण्य भी इतने ही होंगे। और जहां आपके पुण्य है वहां आप समझ जाइए कि आपके घर में भले कुछ कम भी हो, आपके जीवन में कभी कुछ तकलीफें नहीं आएगी। सब सुखी रहेंगे, सब समृद्ध रहेंगे, सब तंदुरुस्त रहेंगे। जो मिलता है आप सुखी से जी पाओगे। ऐसा जीवन जहां आपका बना है उसका एक ही कारण है कि आपके पूर्वजों से लेके आज तक आपने श्रेष्ठ दान किया है गुरु दरबार में। यानी ऐसा दान जहां करे वो श्रेष्ठ दान होता है। दान जहां किया जाए वहां 3 लक्ष्य होने चाहिए। एक, मानवता लक्षी दान, यानी ऐसा दान होना चाहिए जहां जरूरियात वालों को पहुंचे। मानवता लक्षी दान। कोई शैक्षणिक संस्था हो और वहां आपने किताबें दे दी, ये मानवता लक्षी दान है। कोई वृद्धाश्रम हो, वहां आपने कपड़े दे दिए, ये मानवता लक्षी दान है। गाय को घास चारा खिला दिया, ये मानवता लक्षी दान है। यानी मानव को कुछ दे, मानवता के मूल्य जहां छिपे हो, ऐसा जो दान है वो मानवता लक्षी दान है। किसी को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, उसे आपने पैसे दिए, जरूरियात वाले को परिस्थितियां समझ के, ये मानवता लक्षी दान है। अन्न क्षेत्र में आपने दान दिया, ये मानवता लक्षी दान। जो धार्मिक संस्थाएं जो कुछ कार्य करती है उस कार्य के संदर्भ में आपने दान दिया, मानवता लक्षी दान। तो दान हमेशा मानवता लक्षी होना चाहिए, जिसमें संस्कार मानवता का पोषण हो। यह मानवता लक्षी दान, यानी दान का भी लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दान दे दिया हो गया। जो दारू पीता है उसे आप दान दे दो तो क्या फायदा होगा क्या उसमें, और उसको आप बिगाड़ेंगे। कई लोग कहते हैं कि एक आया, बहुत पिया हुआ था बेचारा, कितने दिन से उसकी हालत नहीं थी, पीना नहीं मिलता था, मांगा, दे दिया, दान कर दिया। ऐसा कैसे दान? जो सिगारेट पीता हो उसको सिगारेट देना, दारू पीता हो उसको दारू देना, गांजा पीता हो उसको गांजा देना, ये कोई दान हुआ क्या? ये तो पाप हुआ। वो तो और जो नरक में जा रहा है उसे आप और नरक दे रहे हैं।
जो मर रहा है उसको आप मार रहे हो, ऐसा दान अयोग्य दान है। यानी मानवता लक्ष्य दान, जहां एक नहीं हजारों के जीवन प्रभावित हो जाए, ऐसा दान मानवता लक्ष्य दान। मानवता महके, ऐसा दान मानवता लक्ष्य दान। एक लक्ष्य होता है मानवता, दूसरा लक्ष्य होना चाहिए समाज का कल्याण, कि जहां समाज का कल्याण हो, कोई समाज जहां किसी वस्तु की जरूरत हो, कोई समाज किसी चीज से वंचित हो, कोई समाज जिसे प्रोत्साहन देने की जरूरत हो, ऐसे समाज के लिए जहां कुछ किया जाए, वहां समाज लक्ष्य दान, जहां समाज को प्रोत्साहन मिले। हमारे दादा ने समाज को प्रोत्साहन दिया, विविध समाज को प्रोत्साहन दिया। अब देखिए कि डांग जिले में जाके वहां धर्म की स्थापना की, जहां धर्म परिवर्तन होता था, वहां लोगों को धर्म क्या है वो समझाया। और आज भी वहां से कई लोग आते हैं, उनको सुशिक्षित किया, उनको वस्त्र दिए गए, उनको किताबें दी गई, दवा दारू किए गए, उनको सब दिया गया। तो एक समाज के प्रति अहोभाव से जो दान किया जाए, समाज के उत्थान के लिए जो दान किया जाए, अपने समकक्ष किसी समाज को रखने के लिए कुछ दिया जाए, वो दान होता है समाज लक्ष्य दान। आज ऐसा दान नहीं होता। आज एक समाज बढ़ता है तो दूसरा पिछड़ता है। हम किसी को जाहिल कहते हैं, किसी को अनपढ़ कहते हैं, किसी को तुच्छ कहते हैं, और जो समाज धनिक है उसमें ही हम देते रहते हैं। क्यों न हम जो पिछड़ चुका है, जो बिछड़ चुका है, उसे कुछ दे। ऐसा जो दान दिया जाए, समाज लक्ष्य दान। एक होता है संस्कृति लक्ष्य दान, कि जहां संस्कृति क्या है वो समझाई जाए। अब देखिए, अधिक मास में दीपक दिया जाता है, दीपदान का महत्व है, अन्नदान का महत्व है, गौदान का महत्व, ये संस्कृति है। कि किसी को गाय का दान दिए, संस्कृति, गाय संस्कृति है। किसी को दीपक दान दिया, दीपक जलाना संस्कृति है। हमने वृक्ष दान किए, वृक्ष को बोया, ये संस्कृति है। तो जहां किसी को धार्मिक किताबें दे दी, ये संस्कृति दान। यानी शिक्षण के बाद भी धर्म तो होना ही चाहिए। जहां किसी को धर्म सिखाया जाए, धर्म लक्ष्य दान हो, यज्ञ याग आदि में आप कुछ दान कर दो, समिधा का दान, यज्ञ करने के लिए आप कुछ समिधा दे दो, तो ये धर्म संस्कृति लक्ष्य दान, ये होना ही चाहिए। कोई संस्कृति समाप्त हो रही हो, उसके जीवन के लिए कुछ किया जाए, ये संस्कृति लक्ष्य दान। हमने सुवर्ण महोत्सव मनाया 2013 में। 2013 में हमने सुवर्ण उत्सव मनाया। हम छत्तीसगढ़ से एक पंथी नृत्य लेके आए। मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहां मुझे अच्छा लगा पंथी नृत्य। वहां मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये यहाँ का कुछ सांस्कृतिक नृत्य है, ये ऐसे ही लोग करते हैं, इनके ऊपर ही इनका निर्वाह होता है। एक समाज ऐसा है जो ये नृत्य के लिए जाना जाता है, और ऐसे जब उनको नृत्य मिलेंगे तभी उनकी आजीविका टिकेगी। तो वहां ही मैंने सोचा कि चलो हम उनको आश्रम में बुलाए, उनसे यहाँ नृत्य करवाए। वो बाजार में नृत्य करे तो उनको 4 लोग मिले और उनको बुलाए, और उनकी रोजी चले, एक संस्कृति को एक प्रोत्साहन मिले। तो मैंने छत्तीसगढ़ से पंथी नृत्य यहां लाया। क्यों लाया? इसीलिए लाया कि एक संस्कृति को प्रोत्साहन मिले। मौज शौक करने के लिए लाया, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो संस्कृति नष्ट हो रही है, वहां के किसी समाज को, किसी संस्कृति को यहां कुछ आने के बाद 2 पैसे मिले, इस भाव से मैंने वहां से पंथी नृत्य लाया। हम बार बार यहां से डांगी नृत्य लाते हैं, हम बार बार गणपति में ढोल और झांझ लाते हैं। क्यों लाता हूं मैं? मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम नाचे कूदे, ये तो है, बाद में है, लेकिन ये सांस्कृतिक नृत्य है, ये प्रसंगोपात किया गया नृत्य है। वो अगर हम लाएंगे और उनको पैसे देंगे, उनमें जो नाचने वाले हैं पढ़ते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है,
उनको 2 पैसे मिलेंगे, ऐसा नृत्य यहाँ आएगा, 4 आदमी उनको बुलाएंगे, ऐसी संस्कृति को, हमारी हिंदू संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। यह भाव से मैं उनको यहाँ बुला के लाता हूं। और ऐसे जो आते हैं उन्हें कहां कहां से काम मिलता है। जो पंथी नृत्य लाए थे उन्हें भी 1-2 जगह पे काम मिला। तो यह होता है सांस्कृतिक दान, जहां अपने द्वारा किसी की संस्कृति का पोषण हो जाए। और एक होता है राष्ट्रलक्षी दान, कि आप ऐसा कुछ दान करें जहां राष्ट्र को फायदा हो, जहां राष्ट्र की उन्नति हो, जहां राष्ट्र में क्रांति आए, जहां राष्ट्र गौरव ले सके। ऐसा जो दान होता है वो राष्ट्रदान। और ऐसा एक दान सैनिक करते हैं, बलिदान, मातृभूमि के लिए मर जाना, बलिदान देना, ये राष्ट्रदान है। अपने राष्ट्र का नाम हो ऐसा कुछ करना, ये राष्ट्रदान है। हमने किया था। सुवर्ण महोत्सव के समय पे नेत्रदान हुआ। ये नेत्रदान क्या था? मैं ऐसे मानता हूं राष्ट्रलक्षी दान, कि मेरे संप्रदाय ने 5000 से भी अधिक व्यक्तियों ने अंधश्रद्धा को छोड़ते हुए, अज्ञानता को छोड़ते हुए, भ्रामकता को छोड़ते हुए विज्ञान को अपनाया और अपनी आंखें दान दी। 8 घंटे में 5,500 से ऊपर लोगों ने, तो कई लोगों ने, कई संप्रदाय ने, कई संस्था ने उसके ऊपर से कुछ सीखा होगा और उससे नेत्रदान हुआ। कितने लोगों को आंखें मिली होगी आज तक। तो ये दान क्या हुआ? और ये हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने दर्ज करवाया। क्यों करवाया? कि मेरे राष्ट्र के लक्षी दान है, मेरे राष्ट्र का नाम ऊपर आए, कि भारत में, भारत भूमि से, द्रुतिमान नाथ संप्रदाय से एक धार्मिक संत ने हजारों शिष्यों को प्रेरित करते हुए एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत भूमि का रिकॉर्ड हुआ ही। तो ये जो दान था राष्ट्रलक्षी दान, कि दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी है फिर भी हमने हमने हमारा नाम दर्ज किया। और बाद में आप देखिए उसमें कई लोगों ने, उसके बाद कई धार्मिक संप्रदायों ने भी नेत्रदान किया। सबसे पहला धार्मिक संप्रदाय नेत्रदान हमारा था। तो ये हमारा राष्ट्रलक्षी दान था। शरद पूर्णिमा में हमने दूध एकत्र करके दान किया। ये धार्मिक दान था कि हमारी संस्कृति बढ़े, हमारे धर्म का फैलावा हो, ज्ञान और विज्ञान क्या है हमारे हिंदू धर्म में लोगों को पता चले। इसलिए हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैंने नाम दर्ज करवाया कि सीखिए, नष्ट जो हो रहा है उसे बचाइए। और 31 में आप नाच गान करते हो, उससे अच्छा शरद पूर्णिमा में चांद के प्रकाश में, उसकी दिव्य किरणों में रास का उत्सव कीजिए, रास रमिए और शरद पूर्णिमा का औषध दूध प्राशन करे, जो स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए तंदुरुस्ती लेके आए। इसलिए मैंने ये किया। मैंने गिनीज बुक में और लिम्का में मैंने जानबूझ के दर्ज करवाया। एक धर्मलक्षी दान था और एक राष्ट्रलक्षी दान था। तो ऐसे कार्य करते रहने चाहिए, समुदाय को प्रेरित करते रहना चाहिए। जो भी दान है इसमें अगर राष्ट्रलक्षी नहीं, समाजलक्षी नहीं हो, मानवता लक्षी नहीं हो, धर्मलक्षी नहीं हो, संस्कृति लक्षी नहीं हो, तो समझ लीजिए ऐसे दान आपके दम्भ है। दान ऐसे किया जाए जिसमें कुछ लक्ष्य हो, दान ऐसे किया जाए जिसमें प्रेम भाव हो, कर्तव्य भाव हो, श्रद्धा भाव हो, जिससे दूसरों के जीवन प्रभावित हो जाए। ऐसे दान अधिक मास में होने चाहिए। और ऐसे दान जहाँ होते हैं वहाँ पुण्य अधिक से अधिकतम प्राप्त होता है। यानी मेरी नज़र में दान की व्याख्या ये बहुत कुछ अलग है। एक हाथ लेना और दूसरे हाथ से प्रतिष्ठा ले लेना, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूँगा, ऐसा दान कीजिए जो कर्तव्य से हो, श्रद्धा से हो, प्रेम से हो, मानवता में है के, संस्कृति में है के, राष्ट्रलक्षी हो, राष्ट्र गौरव करे, धर्म फैले। ऐसा दान जो हो जाए, समाज का कल्याण हो, ऐसा दान कीजिए। और ऐसा दान करने से अधिक मास में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। द्रौपदी ने किया तो द्रौपदी के चीर भगवान ने आके, पूरे पांडवों ने भी अधिक मास किया था। ऐसी कथा है महाभारत में।
कि पांडवों ने पूछा कि हमारे जीवन में तकलीफ आई, हम कैसे मुक्त हो। तब श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ कहा, अधिक मास करो, जप तप प्रप पूजा अनुष्ठान करो, तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस मिलेगा। सब ने किया, 5 पांडव द्रौपदी ने किया। तो आप देख सकते हैं कि उन्हें धर्म स्थापना करने का अधिकार मिला, हस्तिनापुर उन्हें मिला। ऐसे जिन जिन ने दान धर्म किए हैं सात्विक भाव से, अधिक मास में उनको अधिक से अधिक फल प्राप्त होता है। और इसलिए आज का दिन अधिक मास का श्रेष्ठ दान महिमा का दिन है। आप भी बैठे बैठे दान करते ही हो, आप कर सकते हैं। हम अब सोचेंगे कि कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले सोचिए, श्रद्धा कहाँ है आपकी? आपकी श्रद्धा कहाँ है? सुबह उठने से पहले जब आपकी आंखें खुलती है, आपको किसका नाम याद आता है? आपके मंदिर में किसका फोटो बराबर सेंटर में रखा है? आप घर से निकलते हैं और आते हैं, किसको याद करते हैं? सोचिए, आपका मन कहां आके शांत होता है? तो हम सब जानते हैं, हम सब नाथ भक्त जानते हैं, हमारी श्रद्धा हमारे सदगुरु में है, हमारे दादा में हमारी श्रद्धा है। तो दान कहां होना चाहिए? गुरु के दरबार में। आपका कर्तव्य कहां है? आपके माँ बाप के प्रति, आपके पूर्वजों के प्रति, आपके समाज के प्रति, आपके धर्म के प्रति, आपके गुरु के प्रति। तो कर्तव्य भाव से दान कहां हो? इन सभी जगहों में दान होना चाहिए। प्रेम आपका कहां है? तो आपका प्रेम हमारे आश्रम के जितने सेवा कार्य चलते हैं उसमें आपका प्रेम है। अन्नदान भंडारा चलते हैं उसमें आपका प्रेम है। हमारा ट्रस्ट विविध विविध प्रकार की, अपना ट्रस्ट विविध विविध प्रकार की सेवाएं करते हैं। औषध, शैक्षणिक, गौदान, ये सब हम करते हैं, आपको पता है। हम यानी आप करते हैं, आपका ही ट्रस्ट, 2-2, 3-3 ट्रस्ट कार्यरत है। तो ऐसी जगह पे दान होना चाहिए जहां दान का उपयोग प्रेम से किया जाता हो। तो अधिक मास में अधिक फलम, जो चाहे आप दान कर सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता है कि आप कहाँ करें, मगर ये सब माध्यमों को ध्यान में रखते हुए आप दान करें। आज पुरुषोत्तम मास है, तो पुरुषोत्तम मास यानी राधा पुरुषोत्तम मास, राधा पुरुषोत्तम मास में 2 हाथ जोड़ते हुए हम सदगुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें। राधा पुरुषोत्तम राधा कृष्ण भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि यह मास में अधिक से अधिक फल प्राप्त होता है। तो आज से ही हम मन से भावना रखेंगे, हम अधिक से अधिक जप करेंगे, हम अधिक से अधिक सेवा करेंगे, हम योग्य रूप से तीर्थ स्थानों में स्नान करेंगे, हम अधिक से अधिक अन्नदान, वस्त्रदान, धनदान, दीपदान, गौदान, ऐसे जितने भी दान है हम प्रेम पूर्वक करेंगे। हमें दान धर्म करने की, सत्कर्म करने की शक्ति दीजिए, ताकि अधिक मास में हम अधिक से अधिक पुण्य फल हमारे परिवार के लिए प्राप्त कर पाए। तो आज के अधिक मास में अधिक फल हम प्राप्त कर सके, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हैं और 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं।
गोरक्षझालन्धरचर्पटाश्च अडवङ्गकानीफमच्छेन्दराज्य चौरङ्गिरेवाणकभर्तुहरिसज्ञा भूम्याम्बपूर्णनवनाथसिद्धः जय जय मच्छेन्द्र समर्थ मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ स्वामीनाथ महाराज की जय। छोटे दादा की जय। अधिक मास के संदर्भ में भंडारे में सीधे अन्न के रूप में योगदान हुआ है। उर्वेश नटवर भाई राठौड़ बारडोली 25 किलो चावल, चेतन पंचाल पांडेसरा 25 किलो गेहूँ, पार्वतीबेन पटेल मगदल्ला 2 तेल के डिब्बे 5 किलो तुअर की दाल, मंजूबेन पटेल नसूरा 25 किलो चावल 10 किलो तुअर की दाल। गौशाला में योगदान शैलेश भाई पटेल देगाम 1 टन घास चारा, सुहास प्रधान 50 किलो जवार। आर्थिक योगदान के रूप में 2001 रुपये उषाबेन पटेल वरसागर, 1000 रुपये विभूति पटेल पिपलदरा। अधिक मास के संदर्भ में आर्थिक दान और अन्नदान गौदान हुआ है गौचारे के लिए। जिन जिन ने अधिक मास के संदर्भ में दान किया है उन्हें अधिक से अधिकतम पुण्य फल प्राप्त हो, ऐसी राधा कृष्ण परमेश्वर को मेरी अंतर से प्रार्थना है। दूसरी बात कि अधिक मास चल रहा है, अभी के 4 गुरुवार अधिक मास के गुरुवार होंगे। ये चारों गुरुवार में जो भी भंडारे होंगे ये अधिक मास के अन्नदान के भंडारे हैं। तो उसमें जो भी भक्त यहाँ आते हैं वो जरूर प्रसाद ले। जो भी भक्त दान धर्म करना चाहे अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। दूसरी बात कि मंदिर निर्माण का कार्य चालू है और दिवाली के बाद पुनः वापस वो चालू हो जाएगा। तो मंदिर निर्माण ये भी हमारा एक कर्तव्य है और मंदिर निर्माण में कर्तव्य भाव से दान दिया जाए, प्रेम भाव से दान दिया जाए। हमारे गुरु की कृपा से हमें जो मिला है तेरा तुझको अर्पण, यह भाव से दिया जाए। मंदिर निर्माण में जो भी दान होगा वो श्रेष्ठ दान ही कहलाएगा, क्योंकि हमारे गुरु के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो हम सब मिलके एक सुंदर से सुंदर, दिव्य से दिव्य और भव्य मंदिर का, गुरु मंदिर का हम निर्माण कर रहे हैं। उसमें तन से, मन से, धन से योगदान देते रहे। जो योगदान होगा उसमें भी अधिक से अधिकतम पुण्य फल प्राप्त होगा ही होगा। ये आपका और मेरा सबका अनुभव है। तो अधिक मास का पर्व है, घर बैठे गुरु मंत्र का जाप करें। किसी तीर्थ स्थानों में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन माँ भगवती का स्मरण, तीर्थ स्नानों का स्मरण, हर हर गंगे हर हर नर्मदे का स्मरण करें और घर में ही स्नान करें और ऐसे समझे कि हमने स्मरण में तीर्थों का स्नान किया है। घर बैठे ही अनुष्ठान करे, जप तप करे, घर बैठे ही सीधे अन्न के रूप में, आर्थिक रूप में जो भी योगदान देना है आप यहाँ आके दे सकते हैं, वहाँ से बेच सकते हैं, दान धर्म करें। तो अधिक मास जो भी है उसका फायदा उठाए और जीवन को सार्थक करे, ऐसा ही मैं आप सबको कहना चाहूँगा। अधिक मास के गुरुवार पर बस इतना ही। अधिक मास से अधिक दानम, अधिक से अधिक फलम। तो सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ आदेश और सबको अधिक मास के संदर्भ में जय जय राधा कृष्ण हरि बोल। जय जय राधा कृष्ण, जय जय राधा कृष्ण, जय जय राधा।